Good morning, dear students. In the previous class, we have talked about the topic of speciation, and we mentioned that how the new species is going to emerge. Either it will be due to the gene flow or it will be due to natural selection that new organisms from the existing species are going to develop. Now, another important concept that we need to understand from the topic of evolution is the topic of evolution and classification. Classification is a very basic thing which you have even studied in your class 9. Classification is simply meaning that you have to group the organisms on the basis of their characteristics. हम organisms को अलग अलग groups में divide करते हैं किसके basis पे? उनके characteristics के basis पे. Characteristics मतलब क्या है यहाँ पे? Characteristics means a nature, the behavior or the function of the person or the organism, or you can say that characteristics means the fundamental basic characters that a person or an organism is having. उसे हम characteristics कहते हैं और इन्हीं characteristics के basis पे हम organisms को अलग अलग groups में divide करते हैं. तो यही चीज को अब हम आगे समझने वाले हैं through the concept of evolution and classification. अब सबसे पहले हम बात करते हैं that similarities between the organisms help us to group them in smaller groups. जब हम कोई भी organisms के बीच में similarities देखते हैं तो similarities देख के हम क्या कर सकते हैं? उनके groups बना सकते हैं. We can group them into smaller groups. जैसे कि मान लीजिए कि all those organisms which are having fins, all those which are having a streamlined body, उन्हें हम क्या कहते हैं कि they all are fishes. All those which are crawling on the ground, they उनको हम group कर लेते हैं क्या? Reptiles. तो हमने reptiles term कैसे दिया है? तो ऐसा मान के कि जितने organisms crawl करते हैं, अपने पेट के बल रेंगते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? reptiles में डालते हैं. जिनके पास mammary glands हैं और जो अपने young one को feed करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? mammals कहते हैं. तो हमने क्या किया? हमने कोई कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर किया है यहाँ पे और इसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने क्या किया है? उनको किसी ग्रुप में प्लेस किया है, राइट? सो दिस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ characteristics, right? If we group them on the basis of characteristics, हम उनके characteristic को देख के उनको group में डालते हैं कि ये पानी में है तो ये aquatic है, ये land पे है तो ये terrestrial है. तो हमने क्या किया? group किया. जो दोनों ही में रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, land पे भी रहते हैं, उनका अलग group बना दिया, amphibian. So what are we trying to do? We are trying to group the organisms, classify the organisms for our easy studies. हम हमारे easy study के लिए उनको अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस करते हैं. किसके बेसिस पे? कैरेक्टरिस्टिक के. और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी फंडामेंटल डिफरेंसेस. फंडामेंटल डिफरेंसेस मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो इजीली पहचान सके, राइट? इतना ज्यादा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे सेपरेट नहीं कर रहे. किसके बेसिस पे कर रहे हैं? इजी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट? हैविंग मैमरी ग्लैंड्स, crawling on the ground is a easy character which is easily recognizable, जो इजीली पहचान पाते हैं और उसी के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस किया है. ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंसेस we consider the characteristics of the organism, and by studying these characteristics we will be grouping them into separate groups, and this method of grouping the organisms is referred as its classification. क्या कर रहे हैं हम? उन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं into distinct groups. ठीक है? तो यहाँ
behavior or you can say appearance or you can say function। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं? या तो उनका बिहेवियर या तो उनका अपीयरेंस, राइट। जैसे कि 4 लिम्स का प्रेजेंट होना, हमारे पास 4 लिम्स है, राइट। 2 आर हिंड लिम्स, 2 आर फोर लिम्स, 2 आर हिंड लिम्स, तो 4 लिम्स का होना। फोटोसिंथेसिस कर पाना किसका कैरेक्टर है? प्लांट का। 4 लिम्स का होना किसका कैरेक्टर है? एनिमल का। तो लिम्स का प्रेजेंट होना इज एन कैरेक्टर ऑफ एनिमल, तो वो एक इजी कैरेक्टर है, इजी फंडामेंटल डिफरेंस है, जिसको देख के ही आप पहचान पाओगे कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब ये प्लांट है। इनके पास 4 लिम्स है तो ये एनिमल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये कैरेक्टर हुआ, राइट। ये फोटोसिंथेसिस कर पाना वो क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है। 4 लिम्स का होना एक कैरेक्टरिस्टिक है। फिन्स का प्रेजेंट होना एक कैरेक्टरिस्टिक है। बोन्स का हॉलो होना किसमें होते हैं? बर्ड्स में, कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एनिमल्स और प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं और इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी। चलो मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ये यूनिवर्सल हो गया। हर एक ऑर्गेनिज्म, दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म है वायरस को छोड़ के, हर एक ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल तो है ही, पर सेल है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेदर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और इट इज न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब ये कैरेक्टर तो सबके पास नहीं होगा, राइट। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके पास न्यूक्लियस है और कई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो न्यूक्लियस नहीं किसके पास होता? तो उसे हम कह देते हैं बैक्टीरिया या तो प्रोकैरियोट्स। क्या कहेंगे हम? प्रोकैरियोट्स। न्यूक्लियस है तो क्या वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है या वो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्यूलर है, राइट। हमने ये देख लिया कि सबके पास सेल तो है। सेल है तो क्या न्यूक्लियस है? क्या न्यूक्लियस नहीं है? ये हमने क्लासिफाई किया, ठीक है। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है तो क्या वो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है? बहुत सारे सेल्स हैं, उनमें एक सेल का बना है तो उसको अमीबा या पैरामीशियम या ऐसा कुछ होगा। बहुत सारे सेल्स हैं, अगर उनके पास मल्टी सेल्यूलर है तो क्या उनके पास टिश्यूज है या सिर्फ सेल्यूलर ही है? क्योंकि ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके पास सेल्स होते हैं पर टिश्यूज नहीं होते, जैसे कि सिलेंट्रेटा फाइलम, जिसमें हम सिलेंट्रेटा में बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो इंक्लूड करते हैं उनके पास सेल्स होते हैं पर टिश्यू नहीं होते, जैसे कि जेलीफिश, ठीक है। पर अगर हम टिश्यू की बात करें, टिश्यू है तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं? फोटोसिंथेसिस और एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे? अगर कर पा रहे हैं तो वो प्लांट्स में आएंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो एनिमल्स में आएंगे, राइट। प्लांट्स में भी फिर फर्दर क्या वो सीड बनाते हैं, क्या वो सीड नहीं बनाते, क्या उनमें फ्रूट है, क्या उनमें फ्रूट नहीं है, ये सब कह के हम क्या कर रहे हैं? वी आर मेकिंग अ हायरार्की। क्या कहते हैं इसे? हायरार्की। ऐसा अगर करते 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 हम एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जब हमें इतना पता चल जाएगा कि हर एक स्पीसीज में क्या अलग कैरेक्टर होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। चलो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। यू आर अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, ठीक है। आप भाई और बहन हो, तो आप दोनों के ब्रदर, ये एग्जांपल है, ठीक है, एंड सिस्टर, आपके एंसेस्टर जो है वो क्या है? कॉमन है,
सिमिलैरिटी इन मोस्ट ऑफ योर कैरेक्टर्स। बट अगर उसी की जगह पे मान लीजिए सिस्टर एंड फर्स्ट कजिन, ठीक है, सिस्टर और फर्स्ट कजिन, तो इनके बीच में भी सिमिलैरिटी है, पर एक ब्रदर और सिस्टर में जितनी थी उतनी नहीं होगी। एक ब्रदर और सिस्टर में काफी कैरेक्टर्स कॉमन होंगे, पर सिस्टर और उसके फर्स्ट कजिन में क्या काफी कैरेक्टर्स कॉमन होंगे? नहीं। सिमिलैरिटी तो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन एंसेस्टर है और वो एंसेस्टर होंगे कौन? ग्रैंड पेरेंट्स। इसीलिए थोड़ी बहुत तो सिमिलैरिटी होगी, पर क्या एक ब्रदर और सिस्टर जितनी सिमिलैरिटी होगी? नहीं। तो ऐसा करते करते जब आप पूरा एंसेस्टरी ट्री बनाते हो तो आप एक ऐसे जनरेशन पे पहुंचोगे जो एंसेस्टर है टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स, टू ऑल द ह्यूमंस और ऑल द फेलो पीपल इन योर फैमिली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कॉमन एंसेस्टर्स जब हम देखते जाते हैं, सो वी कम अक्रॉस वन सच ऑर्गेनिज्म व्हिच इज एंसेस्टर टू ऑल द लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, कॉमन ancestor to all the life forms, right? There will be a common ancestor to all the life forms। और ऐसा पता चलता है कि living organisms have formed from non-living matter। अल्टीमेटली नॉन लिविंग मैटर, क्योंकि सेल है तो सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर कार्बन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, तो ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जिन्हीं में से सेल बना है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि दुनिया में प्रेजेंट होने वाला हर एक ऑर्गेनिज्म जो सबसे बेसिस है लाइफ का, वो तो क्या है? नॉन लिविंग मैटर ही है, जिसमें से सारे लाइफ फॉर्म्स डेवलप हुए हैं। पहले प्रोकैरियोट डेवलप हुए होंगे, फिर यूकैरियोट डेवलप हुए होंगे, राइट? उसके बाद टिश्यू वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, फिर जिनके पास और टिश्यू से ज्यादा ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऐसा करते करते कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, वही क्या है? वही है बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। दैट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, दैट फ्रॉम inorganic matter, from non-living matter, the life has came into existence. That can be shown over in this topic. So that is all about the topic of evolution and classification.